A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से जुड़ी वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है. And along with this, we will also share some very critical practice questions with you towards the end of the lecture. क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आज के ही तमाम फैक्ट्स पे आधारित हैं, तो आप इनके उत्तर देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स को निरंतर शेयर करते रहिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 21 अगस्त अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की. द वेरी फर्स्ट फैक्ट हियर is associated with 1972 when the Wildlife Protection Act was passed. अर्थात आज के दिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था. The Indian Parliament had passed the Wildlife Protection Act इस उद्देश्य से so that it can protect and preserve the various varieties of animals and plants living in the country. This act was implemented on 9th September 1972. The first law for the protection of wildlife had been passed much earlier in 1887 by the British Indian government. इसे बुलाया जाता था वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट 1887 और इसके बाद एक दूसरा लॉ पारित किया गया 1912 में जिसे नाम दिया गया वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट का. This act was also later amended in 1935 when the Wild Birds and Animal Protection Amendment Act 1935 was enacted. स्वतंत्रता के पूर्व के समय वन्यजीव संरक्षण एक प्रायोरिटी नहीं थी. Not much action was taken to focus on wildlife conservation efforts in India, परंतु 1960 के बाद स्थितियां परिवर्तित होती चली गईं. 1960 में ही वन्य जीवों के संरक्षण और कुछ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने का मुद्दा सामने आया. Before the Wildlife Protection Act 1972 was passed, there were only 5 national parks in the country. परंतु इस एक्ट के आने से the importance being given to wildlife preservation has touched new heights. This act has 6 schedules and each one guarantees varied degrees of protection for animals and plants. यहाँ animals में included है अलग अलग species such as insects, reptiles, fishes, birds as well as mammals. इस एक्ट का पहला और दूसरा शेड्यूल बात करता है about complete protection being provided to the endangered and enlisted species and any violation can incur highest penalty and punishment. इसमें स्पीसीज शामिल हैं जैसे कि टाइगर, एशियाटिक लायन, स्नो लेपर्ड, डियर, स्लॉथ बेयर, टिबेटन फॉक्स, लंगूर्स, मकाक्स, एशियन एलिफेंट, स्नेक्स एटसेट्रा. और अगर बात करें इस एक्ट के थर्ड और फोर्थ शेड्यूल्स की, सो हियर protected species are included, but the punishment that is given for any violation is a degree lesser. इसमें शामिल है species such as hyena, hog deer, wild pig, hares, porcupine, bat, flying fox, tortoise, Himalayan rat and so on. ये act completely prohibit करता है killing, capturing, poisoning and trapping of wild animals. In fact, ये taxidermy के भी विरुद्ध है. यहाँ प्रश्न उठता है, what is taxidermy? So taxidermy is the practice of using animal bodies as trophies or prizes. The cases that are registered under this act are usually taken care of by the forest department. और इस एक्ट में एक अमेंडमेंट भी किया गया है वर्ष 2002 में. इस अमेंडमेंट के पश्चात पेनल्टीज और पनिशमेंट को और भी तगड़ा और स्ट्रिक्ट बना दिया गया है. अब इस संदर्भ में आप ये भी अवश्य याद रखिएगा कि भारत में जब वाइल्ड लाइफ के प्रति अवेयरनेस बढ़ती चली गई, सो प्रोजेक्ट टाइगर वाज आल्सो लॉन्च्ड इन अप्रैल 1973. इस प्रोजेक्ट ने इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ टाइगर्स को संरक्षण देने के लिए
कई टाइगर रिजर्व स्थापित किए, एज वेल एज इट सेट अप अ टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स टू combat poachers and to minimize human tiger conflicts. यहाँ please also remember कि the first director of Project Tiger was Shri Kailash Sankla. और अब इसके साथ आइए देखते हैं which is the other fact of today. So this is associated with 2006 when उस्ताद बिस्मिल्लाह खान had passed away. अर्थात आज के दिन जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन हो गया था. वह एक प्रसिद्ध भारतीय म्यूजिशियन थे who was credited with popularizing the शहनाई, जो कि एक रीडेड वुडविड इंस्ट्रूमेंट है. उनका संबंध आधुनिक बिहार से था और उन्होंने कुल 14 वर्ष की आयु से ही स्टेज कॉन्सर्ट्स में भाग लेना शुरू कर दिया था. He is in fact known to have popularized the instrument of Shehnai to and within a global audience. Some of his disciples and followers include S. Balesh, Krishna Balesh, as well as his own sons Nazim Hussain and Nair Hussain. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से ऑनर किया गया था. दैट इंक्लूडेड पद्मश्री इन 1961, पद्म विभूषण इन 1980 एज वेल एज पद्म भूषण इन 1968. इसके अलावा he was also a recipient of the संगीत नाटक Academy Award in 1956. But the most memorable fact associated with him is that he is also a winner or recipient of India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, which he received in the year 2001. इनके सम्मान में द संगीत नाटक एकेडमी इन दिल्ली, जो कि भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है, ने एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार इंस्टीट्यूट किया इन द ईयर 2007. It is provided to young artists in the field of music, theatre and dance. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट फैक्ट, जो है एसोसिएटेड 2007 से, when famous writer कुरुतुलैन हैदर had passed away. अर्थात आज के दिन जानी मानी लेखिका कुरुतुलैन हैदर का निधन हो गया था. कुरुतुलैन हैदर एक इंडियन उर्दू नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थी. शी वॉज एन एकेडमिशियन एंड जर्नलिस्ट एज वेल. वह जानी जाती हैं एज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एंड इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी नेम्स इन उर्दू लिटरेचर. और सबसे प्रसिद्ध है इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास आग का दरिया अर्थात रिवर ऑफ फायर, a novel that was first published in Urdu in 1959 from Lahore in Pakistan. She also received the Gyanpith Award in 1989 for her novel Travelers Unto the Night. ये हम सभी जानते हैं that Gyanpith Award that was instituted in 1961 is the oldest and the highest Indian literary award presented annually by भारतीय ज्ञानपीठ उन सभी लेखकों के लिए जिनका लिटरेचर के प्रति कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग माना जाता है. And not only this, Kurtulain Haider had also received the Sahitya Academy Award in 1967 for her book The Sound of Falling Leaves, as well as she received the Soviet Land Nehru Award in 1969. उन्हें 1994 में साहित्य एकेडमी फेलोशिप प्रदान करी गई, जो कि इंडिया की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर साहित्य एकेडमी का सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस ऑनर माना जाता है. In 2005, she was conferred with Padma Bhushan, the third highest civilian honor awarded by the Indian government, उनके सभी contributions के लिए towards Urdu literature and education. और अब इसके साथ देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो है संबंधित वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे से. अर्थात आज के दिन across the world every year the World Senior Citizen Day is observed. ये मनाया जाता है as विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस. इस दिन को ऑफिशियली शुरू किया गया था बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रोनाल्ड रीगन. ऑन द 14th of December 1990 the United Nations General Assembly declared August 21 every year to be observed. और सबसे पहली बार इसकी फॉर्मल ऑब्जर्वेंस हुई थी 1991 में. इस दिन का उद्देश्य है अवेयरनेस पैदा करना और जागरूकता बढ़ाना लोगों में टुवर्ड्स ऑल द फैक्टर्स एंड इश्यूज जो कि ओल्डर अडल्ट से संबंधित हैं.
सच एज उनकी सेहत से संबंधित प्रॉब्लम्स और उनके साथ होने वाले अब्यूज की प्रॉब्लम जो कि सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही प्रेवलेंट है. इट इज ऑल्सो अ डे to recognize and acknowledge the contribution made by geriatric population अर्थात older population towards society. हर वर्ष इस दिन की कोई ना कोई अनोखी थीम अवश्य डिसाइड की जाती है और अगर बात करें 2021 या वर्तमान वर्ष में तो थीम है पैंडेमिक्स. Do they change how we address age and aging? And this is in line with the rising epidemic of coronavirus across the globe. How has it posed a challenge for geriatric population और किस प्रकार इस समस्या का समाधान सभी सरकारों और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जा रहा है. तो आइए अब देखते हैं which questions do we need to solve today. The very first one is when was the Wildlife Protection Act passed in India? अर्थात भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शंस है A 1970, B 1971, C 1972 और is it D 1973? दूसरा प्रश्न है Who was the first director of Project Tiger? अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर के पहले डायरेक्टर कौन थे? ऑप्शंस है A V S विजयन, B कैलाश संखला, C गंगा सिंह और was it D सलीम अली? आज का थर्ड क्वेश्चन है With which musical instrument was उस्ताद बिस्मिल्लाह खान associated? अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ऑप्शंस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है A flute, B तबला, C सरोद, D शहनाई. The fourth question is who was the first musician to be awarded the Bharat Ratna Award? अर्थात भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम आप हमें बताइए. ऑप्शंस है A पंडित भीमसेन जोशी, B रविशंकर, C MS सुब्बुलक्ष्मी, D उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. The fifth question is when is the World Senior Citizen Day observed? अर्थात विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं A 17 अगस्त, B 18 अगस्त, C 20 अगस्त, D 21 अगस्त. With this आज का सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है Who is the author of the famous book आग का दरिया और रिवर ऑफ फायर? अर्थात प्रसिद्ध पुस्तक आग का दरिया या रिवर ऑफ फायर के लेखक का नाम आप हमें बताइए. ऑप्शंस है A इस्मत चुगताई, B अमृता प्रीतम, C कुर्तुलेन हैदर, D राशिद जहां. और अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ बेहद दिलचस्प फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगी. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी निरंतर दीजिए हमें. With this, have a great day. Please stay safe and thank you so much to all of you.